दक्ष देख लेना अगर फोन आता है, पूछना who is calling. Okay, so probably today is going to be, so we are going to finish our graph neural networks because we have covered spatial, we have covered spectral, then we have covered this spatial part about to finish. But it's not the case that only two things are there. There are so many upcoming things, and as you know that deep learning is anyways going to be a very hot topic, and whatever we used to cover, they every time we are going to get new and new algorithms. So in order to get yourself updated, as we have covered TD3 is a very state of the art algorithm, but it's not a very recent algorithm. It is, I assume, 2016 or 17 algorithm. After that, there must be huge advancements, as well as it may be the case that you got more improvement in TD3, then more different paradigms by which you can improve that algorithm. Similar to the case of graph. So these two areas, what I wanted to say, graph neural networks and reinforcement learning, they are right now the hottest topic. Along with that, transformers. And what we started to see is that transformers and BERTs and GPUs Shashank, can you listen? Yes, sir. Now, please. Okay, previously was able to listen whatever I was saying or not? Yes, sir, but it was not properly connected, so it was the fluctuation was there in the video. Okay, okay. But now I can see my the Zoom stuff. I want to see that. So I can't see the picture, but I can hear you. Okay, so you can see the screen properly. No, sir, I can't see the screen. Oh, it's not shared because it reconnected. Yes, sir. Check that Zoom screen sharing. Yeah, what video? You can see or not, Praveen? No, sir. No, they cannot see. Wait, so he's checking. Yes, so whatever in between I was trying to say was that in the case of RL as well as graph CNN, transformers are also coming in, and they started to be utilized more and more in order to solve or being utilized in the paradigm of RL as well as graphs. So we have seen huge amount of papers like utilizing transformer models for doing RL, as well as graph BERT type of models we have also seen. Yes, he is checking. Now you can see. Yes, sir. Okay, you can see the screen now. But it is frozen, sir. So Frozen screen. Oh, there is some connection issue. We are having. Oh, then you use that 4G.
हाँ योर 4G, इसमें वाईफाई है। Sir, I wanted to ask if we will be covering the distillation part as you mentioned in the very first lecture, or we will be ending here. अच्छा अच्छा, रुक जाओ, वेट, उनकी आवाज कैसे आ रही है? हाँ, now you can see Vivek. Yes, sir. Yes, And sir. you can. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Aadhar, you were saying, or someone was saying knowledge distillation, right? I was thinking, Shashank. Shashank. Okay, so Shashank, knowledge distillation we can cover. Anyways, it's not a very, if I say, initially I thought that the student teacher network, they are going to play big role, but it's not very difficult to understand and very easily one can cover. But it depends upon amount of time that we have. Again, we are getting something close. Yeah, so our plan is that today finish, then next week onward, Daksh is going to share the presentation schedules for your paper presentation. We finish that if we got a lecture or so in between, because we also have to cover one or two code related to our graph algorithms. So Ranjit is going to cover in between, and if we get time, I will be happy to discuss about knowledge distillation. Fairly trivial stuff, but useful if you have bigger networks and deeper networks with huge amount of parameters, and you wanted to distill whatever the knowledge that you have got in this teacher network into some small say student network, which is much lesser in terms of parameters as compared to your teacher. There are fairly trivial ways, I mean, not very difficult to correlate, and they started to use softmax and the temperature softmax and so on. So things will be directly related. So we can think about that if we get time, Shashank. Okay. Okay, sir. Okay, thank you. So one good reference will be tiny bird. So we have a big bird, then you can have this tiny bird, and probably we will share. If you are interested, then I will ask Daksh to share. We have one book in which tiny bird is explained in detail, maybe 5 or 8 pages, in which the whole knowledge distillation actually they used to cover, and then use this tiny bird to understand the tiny bird. Yeah, so that is also one thing that somebody need to understand for if we say that advanced deep learning, but it depends upon time, and we will be happy to somehow cover. I will be happy to know some of you if you want to suggest some things or feedback or something related to the course, if you have any. So this, Shashank, I have got a very good feedback of knowledge distillation and the interest of the students. So we'll somehow see if you have anything else. आप बता सकते हो. किसी को कुछ बोलो विवेक. सर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट सर जो आप आरएल वाली बुक से पढ़ाया था ना बीच में, वो काफी ज्यादा, जो आपने टीडी वो काफी ज्यादा मेरे को नॉलेजेबल लगी. ए विवेक, तुम्हारी आवाज अभी तो तेज आ रही थी, एकदम से स्लो हो गई. तुमने माइक कुछ पीछे कर दिया. जोर से बोलो जरा, पास में. हाँ, अब ठीक है. अभी ठीक है ना? हाँ हाँ सर, मैं ये कह रहा था जो टीडीपीजी वगैरह पढ़ाया था बुक से, वो काफी ज्यादा मेरे को अच्छा लगा था.
और जो आपने TD3 की बुक भेजी थी वो भी मेरे को काफी सही लगी थी। तो अगर वो बुक शेयर कर सको या उसका लिंक जहाँ से मैं डाउनलोड कर सकूँ तो बेटर रहेगा। ओके, हम सारे रिसोर्सेज 2 4 5 है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, मैंने बहुत सारी किताबें रेफर की, ग्राफ की, आरएल की खरीदी भी, और उसके बाद मुझे 3 4 अच्छी लगी किताबें। अभी सैचुरेटेड नहीं है ये, मैं आपको बता दूं। अब आप आरएल की एक किताब उठाओगे उसमें कुछ कहेगा, दूसरी किताब में कुछ और कहेगा, और वो इसलिए क्योंकि एक 2016 में छपी है, एक 2018 में छपी है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट बदलती जा रही है, बातें बदलती चली जा रही हैं। 16 वाला कहेगा TD3 इज द बेस्ट, और मे बी 14 वाला कहेगा कि TD3 है ही नहीं, मतलब उसने कवर ही नहीं किया होगा क्योंकि वो आई ही नहीं थी। तो we understand, we will somehow try to give you the links because most of the books are publicly available. हम आपको किसी एक जगह पे डाल के दे देंगे, क्योंकि वो वाला इश्यू ना हो। दक्ष will do the thing because officially we don't give the links even they are freely available, but we will definitely give you certain things. Daksh will try to share. और भी कुछ आप कहना चाहें तो और भी लोग कह सकते हैं। रिसोर्सेज वी अंडरस्टूड। हाँ, अभिजीत मनहास, आपको कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना है फीडबैक के लिहाज से? नहीं। आधार, आपको कुछ कहना है? सर मतलब इसमें जो चीजें यूज हुई हैं तो उसके रिलेटेड जो पेपर्स हैं वो सब वो उसी चीज के बारे में, मतलब वो मॉडल पे हो जाए अपलोड या लिंक्स उनके? इनके पेपर तो तुरंत मिल जाएंगे। DDPG डालोगे उसका पेपर मिल जाएगा, TD3 डालोगे उसका पेपर मिल जाएगा, DQ1 का पेपर मिल जाएगा, पॉलिसी ग्रेडियंट का पेपर मिल जाएगा, रीइंफोर्स जो एल्गोरिथम है, एक्टर क्रिटिक का पेपर मिल जाएगा, ये 3C का पेपर मिल जाएगा। ये सारे पेपर बस ऐसे नामों से ही अवेलेबल है। सर POP कवर होगा क्या इस कोर्स में? क्या बोला? POP एल्गोरिथम RL की POP भी मैंने कोई कवर की थी। PPO प्रॉक्सिमल ट्रस्ट रीजन वाली है, प्रॉक्सिमल, वो तो मैंने नहीं ये कवर सर की। PPO हाँ, तो वो मैंने नहीं कवर। अच्छा बट सर नहीं होगी ना इस वो कोर्स मैंने में? कवर नहीं किए, लेकिन वो मटेरियल अगर आप चाहें तो वो हम एक बुक शेयर करेंगे। PPO स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है और लोग कवर अप करते हैं, मतलब बुक्स में दी हुई है, तो हम लोग आपको शेयर करा सकते हैं PPO भी, बट मैंने नहीं कवर अप करी हुई है। और किसी को कोई एल्गोरिथम के बारे में पूछना है, बताना है ये कवर की जा सकती है या नहीं, या आपका कोई इंटरेस्ट है? देखो क्या होगा, जरूरी नहीं कि मैं आपको अभी कवर अप कर दूं। मैं हो सकता है अपकमिंग, जिन लोगों ने पहले ये कोर्स किया है पिछले सेमेस्टर में, दे नो दैट इन दैट कोर्स वी हैव कवर्ड लिमिटेड RL एल्गोरिथम्स. This time we have covered almost all of the prominent RL algorithms and the concepts which are required. Maybe in the next upcoming offering मैं ग्राफ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करूं और ग्राफ में बहुत सारी चीजें कवर अप करूं. And soon I am planning also one complete course on RL. That's going to be deep reinforcement learning, only single course, full fledged course on deep reinforcement learning, which will be having all possible algorithms. So आप लोगों के जो इनपुट या आप लोगों का जो फीडबैक होता है, that can be addressed for our upcoming offerings. और अगर जैसे शशांक ने एक छोटी सी बात बोली, नॉलेज डिस्टिलेशन, मुझे याद हो गया, अभी मेरा मन किया तो मैं किसी भी दिन नॉलेज डिस्टिलेशन कवर अप कर सकता हूँ. तो अगर किसी को कुछ बताना है वो बता यहाँ भी सकता है, मेल भी कर सकता है, और डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकता है. आधार, डू यू वांट टू से एनीथिंग? अच्छा, आवाज नहीं जा रही. प्रवीण, आपको कुछ कहना है? नो सर. ठीक है, चलिए. तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो भी कोर्स में हम लोग कंटेंट यहाँ पे कवर अप करते हैं, we used to cover things in very deep and detail. Along with that, several times we wanted to give you the code demonstrations as well. अगर आप वो कोड को इस थ्योरी के साथ कंबाइन कर ले गए तो आप वो पूरी चीज समझ गए.
बिकॉज सब चीज नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कुछ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं जिनका की डिस्कशन नहीं होता यहाँ। तो कोड के साथ अगर आपने पूरा समझा तो आप उसके बाद इसे अप्लाई करें, ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पढ़ाना थियोरेटिकली, सेकेंड स्टेप है कोड के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बैठा लेना कि अच्छा एक्सपीरियंस बफर कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, लेकिन एक्सपीरियंस बफर ऐसे बनाता है, सॉफ्ट रिप्लेसमेंट इस तरह से किया जाता है, DQ लर्निंग ऐसे होती है, डबल DQ में 2 किस तरह से लगाएं, ट्विन वाले में किस तरह से लगाएं, पॉलिसी में एक्सप्लोरेशन कैसे करें, डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी और स्टोकेस्टिक पॉलिसी को किस तरह से डिफरेंशिएट करें, और ये डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी जो है वो क्या रिटर्न करेगी, स्टोकेस्टिक पॉलिसी किस तरह से रिटर्न करेगी। अगर ये आप 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बैठा ले गए तो ये सेकंड स्टेप आपने कर लिया। और तीसरा स्टेप होता है कि इसी एल्गोरिथम को, इस कोड को या इस नेटवर्क को चलाएं और इससे जो भी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है उसे चेक करके देखें कि क्या मैं उसे रन कर पा रहा हूं उस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर। Once these 3 steps are done, you are ready for the final 4th step, which is essentially to solve your own problem. क्योंकि करने तो यही आए हो, आपके पास कुछ बच्चे होंगे जो बीटेक के हैं, कुछ एमटेक के हैं, कुछ पीएचडी के हैं। बीटेक का लड़का पहले स्टेप में ही मगन है, फर्स्ट और सेकंड में ही वो खुश हो जाता है कि यार चला लिया, समझ में आ गया। एमटेक का लड़का फर्स्ट सेकंड थर्ड तक में ओके हो जाता है, लेकिन पीएचडी के लड़के को, बच्चे को ये बात समझनी ही पड़ती है कि ठीक है ये आ गया समझ में, पूरा हो गया, कैसे चलाते हैं, चला भी लिया, हो गया, लेकिन ये मेरे काम में कैसे लगेगा, है ना। ये मेरे अपने काम में, मैंने बोला इमेज मैचिंग करो ग्राफ न्यूरल नेटवर्क से, अब आप गए, अब आपको समझना ही पड़ेगा कि ये नेटवर्क इस कंसेप्ट को इमेज मैचिंग में कहां से ले आऊं। इमेज में तो ग्राफ होता ही नहीं है, किस तरह से इमेज को ग्राफ बनाऊं और इस तरीके से ग्राफ बनाऊं कि जो सिमिलर इमेजेस हैं उनके सिमिलर टाइप के ग्राफ बने, जो डिफरेंट इमेजेस हैं उनके डिफरेंट तरह के ग्राफ बने, फिर एक ग्राफ न्यूरल नेटवर्क का क्लासिफायर बनाया जाए और कुछ कुछ काम किया जाए। तो ये चारों स्टेप एसेंशियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन चारों स्टेप पे बीटेक हो चाहे एमटेक हो चाहे पीएचडी, अगर मेरा बच्चे इस पे काम करते हैं so they are definitely going to get the benefit out of this course। न कि सिर्फ नाम के लिए आपने लिखा कि एडवांस डीप लर्निंग किया है, क्योंकि कोई भी बंदा आपसे अब एक्सपेक्ट करेगा आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे देख के कि अच्छा एडवांस डीप लर्निंग, सो ही इज एक्चुअली मास्टर ऑफ डीप लर्निंग। आपको डीप लर्निंग का मास्टर होना ही चाहिए। अब आप रेलू का डिफरेंशियल में फंस रहे हो, साधारण गैन या एलएसटीएम या ट्रांसफार्मर की कोडिंग में फंसेंगे, तो एडवांस डीप लर्निंग की बात आप जब करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो अब आपने चूंकि एडवांस डीप लर्निंग ले लिया है, कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, तो डीएल एंड एडीएल दोनों के दोनों में आपकी मास्टरी होनी ही चाहिए, चाहे आप बीटेक के हो, एमटेक के हो, चाहे पीएचडी के। और ये काफी इन्वॉल्व वे में समझाया गया। आप कहीं से भी ओपन, मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड से लेके डीप माइंड, सब जगह के आप लेक्चर्स देखो। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उनसे बेहतर पढ़ाया है, लेकिन मैंने खुद उन्हीं जगहों से पढ़ करके ये कंटेंट इतना डीप बनाया है कि ये उनके जैसा है, और कई जगहों में ये उनके लेक्चर्स को आपके लिए अडेप्ट किया गया है और डिटेल्स डाल करके कि अच्छा ये वाली चीज और डिटेल बता दे कि इन बंदों को ये वाली चीज तो पता ही नहीं होगी। तो स्टैनफोर्ड, CMU, हमारे डीप माइंड का जो RL का कोर्स है, आप वहां पर भी देखेंगे ये चीजें वहां से आई हैं, अच्छे से समझ करके और क्यूरेट की गई हैं आपकी डिमांड्स के हिसाब से, so दैट कि आप ये सारी चीजें समझ सकें। तो अभी आप इस कंडीशन पे हो कि आप ये सारी चीजें समझ सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। 6 महीने बाद आप भूल जाओगे, मतलब ये RL ही भूल जाओगे। अगर आपने 3 महीने अपने आप को गैप दिया तो ये आप RL कंप्लीटली भूल जाओगे और आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। आप TD3 तो छोड़िए, आप DQNE नहीं बता पाएंगे किसी को ठीक ढंग से। सो कुछ बच्चे MTP करने वाले होंगे, कुछ अपनी थीसिस कर रहे हैं। इन टेक्निक्स को बेस्ट पॉसिबल वे में एनालाइज करें,
समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये तो सब हमने कवर अप कर लिया था। बहुत छोटी सी बात रह गई थी, वह सीधा वहां पर ही आ जाऊंगा। मुझे लगता नहीं कि इन सब में कहीं भी किसी को कोई इशू रहा होगा। और आपने एक बात समझी होगी कि ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में कोई नई चीज नहीं बताई गई। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में एक खास बात बताई गई। क्या खास बात है वो खास बात ये बताई गई है ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में कि एग्रीगेशन तो आप करोगे ही और ट्रांसफॉर्मेशन भी आप करोगे, दो ही चीजें आप करते हो। आप एक नोड पे जाकर के बोलते हो कि देखो तुम्हारे साथ कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं, और जो जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है उनका फीचर आप में जोड़ा जाएगा। ठीक है, कितना कितना जोड़ा जाएगा ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किन के साथ कनेक्टेड हैं, और कितनी कितनी वेइंग की जाएगी। तो फिर पता चला यार डायगोनल्स जो है उनके इनवर्सली वेइंग कर लो, क्योंकि कुछ नोड जो है उनकी कनेक्टेडनेस या डिग्री बहुत ज्यादा है, तो अगर उनको बहुत ज्यादा लोग इनपुट दे देंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसका फीचर। कुछ की कम है तो उनको कम लोग दे देंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इस तरह से डिग्री से उसको ये कर लिया जाए। और यह इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा काम इमेज में नहीं होता था, क्योंकि इमेज में ग्राफ के तरीके से हम लोग देखते नहीं थे। हम लोग इमेज में नेबरहुड बताते थे कि ये 3x3, 5x5, 8x8 और सारे पिक्सल मौजूद होते थे। यहां पर अगर एक नोड ले लूं तो उसका नेबरहुड कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन लेफ्ट है, कौन राइट है, ग्राफ में डिफाइंड ही नहीं है। ग्राफ एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। इस कारण से हमने कॉन्सेप्ट वही लिया जो कि कन्वोल्यूशन का होता है, लेकिन नेबरहुड एडजेसेंसी मैट्रिक्स से लाए। और ट्रांसफॉर्मेशन तो वहां पर भी तो डब्ल्यू वेक्टर लर्न करते थे, तो यहां भी डब्ल्यू वेक्टर को लर्न किया जाने की कोशिश की जाने लगी। तो कॉन्सेप्ट रिमेन्स टू बी द सेम, जो कि हमने यहां पर उस दिन देखा था कि बहुत ही सिंपल, मेरी मैट्रिक्स ए है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ये फीचर वेक्टर है। एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट बहुत तरह की हो सकती है। कई बार हमें एम्बेडिंग निकालनी होती है, मतलब ये फीचर वेक्टर निकालना होता है, या फिर हमें एजेस निकालनी होती है, मिसिंग एजेस। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ये ग्राफ ऐसे दिया गया हो, अच्छा इस ग्राफ के मैं फीचर्स मैंने रेंडमली इनिशियलाइज कर दिया, थोड़ी देर ट्रेन किया, मतलब ये कि सर्टेन लेयर्स लगाई मैंने 1 2 3 लेयर्स लगाई, उनसे फीचर पास किया, ये फीचर चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया ये मेरा फीचर? तो आपको याद होगा कि मैंने पहले AX लगवाया, इसमें AX लगवाया, देन A hat लगवाया, देन A hat hex लगवाया, देन D लगवाया, देन D इनवर्स लगवाया, और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे कि D इनवर्स AX हो सकता है, D इनवर्स A hat X हो सकता है। तो ये फीचर बदल के ऐसे ऐसे हो जाते हैं, जो 0 0 था वो 1 -1 हो जाता है इस केस में, और यहाँ पर भी ये ऐसा या ये ऐसा, ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो ये एक न्यूरल नेटवर्क की लेयर से पास होकर के फीचर ऐसे बदले, दूसरी लेयर से पास होकर, तीसरी लेयर से पास होकर, चौथी लेयर से पास होकर, और इस तरह से 2 3 4 लेयर से पास होने के बाद ही मेरा न्यूरल नेटवर्क सैचुरेट कर जाता है, और आपके पास ये फीचर्स आने लग जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास ग्राफ तो यही है, और इस ग्राफ में ये एज नहीं थी, लेकिन अब आप ये एज लगाने लग गए। क्यों? क्योंकि ये फीचर इसके बहुत पास आ गया आफ्टर ट्रेनिंग। अगर ये फीचर इसके बहुत पास आ गया तो आपको क्या पता चला कि इन दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टेडनेस है। तो कई बार हमें लिंक प्रिडिक्शन करना होता है, कई बार हमें नोड के फीचर का प्रिडिक्शन करना होता है या लर्न करना होता है, जिसको एम्बेडिंग कहते हैं। कई बार हमें ग्राफ के स्ट्रक्चर को लर्न करना होता है। अब ग्राफ का स्ट्रक्चर इन फीचर्स में कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है कि एक नोड है, ये नोड किन लोगों से कनेक्टेड है, उसका फीचर इसमें आया। ये पहले न्यूरल नेटवर्क से पास होने पे या लेयर से, अगर जब ये सेकंड लेयर से पास होता है,
थर्ड लेयर से पास होता है। तो पहले वन हॉप नेबर्स आते हैं। वन हॉप नेबर्स का मतलब होता है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब वो सेकेंड लेयर से पास होने लगते हैं तो टू हॉप नेबर्स अंदर आने लगते हैं और उनका फीचर भी मिलने लगता है। फिर थ्री हॉप नेबर्स, फोर हॉप नेबर्स। आपको बहुत ज्यादा डीप नेटवर्क बनाना नहीं पड़ता ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में डेप्थ का मतलब है कितने हॉप के नेबर्स के फीचर का एग्रीगेशन आपके इंडिविजुअल नोड्स में हो गया है। अब मान लें आप एग्जांपल के तौर पे कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें 1 मिलियन नोड्स हैं। अब आपने पहला लेयर लगाया, दूसरा लेयर लगाया, तीसरा, पांचवा, आठवां, 25वां, 28वां, अरे धीरे 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 करके अगर उसको सारी चीजों के सारी नोड्स का वैल्यू मिल जाएगी तो सारी की सारी नोड्स एक एवरेज वैल्यू पे चली जाएंगी, सारी की सारी नोड, और ग्राफ के एम्बेडिंग सैचुरेट हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर सारी नोड्स का डेटा यूज करने लग जाए तो सब लोग एक वेरी सिमिलर टाइप ऑफ एम्बेडिंग की तरफ चले जाएंगे एंड दे स्टार्टेड टू गेट a very similar type of averaged feature which is not going to be having much meaningful value। लेकिन उसकी जरूरत पड़ती कब है? उसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप टोटल ओवरऑल ग्राफ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना चाहें। जब आप इंडिविजुअल नोड के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, तो इस नोड की किसके साथ कनेक्शन है, दैट इज द सिग्नेचर ऑफ दिस नोड, और वही इसका स्ट्रक्चर है। इस नोड का स्ट्रक्चर, इस नोड का सिग्नेचर जो इसकी एम्बेडिंग के अंदर जाता है वो क्या है कि ये किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड है और वो किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड थे और पीछे से वो किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड थे। अब 2, 3 या 4 स्टेप, 5 स्टेप के बाद थिंग्स आर ओके, बिकॉज इफ यू स्टार्टेड टू यूज 25 स्टेप्स बैक तो सब कोई सबसे कनेक्टेड है। आप 50 नोड्स पीछे चले गए, मतलब इट्स लाइक दैट आई एम ऑल्सो हैविंग सम रिलेशनशिप विद से सोनू निगम, आई एम आदित्य निगम, तो मैंने कहा सोनू निगम मेरा भाई है। तो ऐसे जिस तरह से सोनू निगम मेरा भाई है वैसे विराट कोहली आपका भी भाई हो सकता है, क्योंकि हमने बोला वो फर्स्ट स्टेप में नहीं है, सेकंड में नहीं है, 15th स्टेप पे कहीं रिलेटेड है। तो 20th स्टेप में आप किसी और से रिलेटेड होंगे और 70th स्टेप में आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो जाएंगे। 70th भी बहुत हाई नंबर है वैसे तो। देयर वाज सम वेरी फेमस एक स्टोरी भी है कि यूरोप में किसी ने किसी के नाम से लेटर लिख के भेज दिया और बहुत डिटेल्ड एड्रेस भी नहीं दिया, और आफ्टर 5 और 8 आइटरेशंस में वो उसके पास पहुंच गया। तो इट्स विच एसेंशियली नीड टू से दैट कि हाँ कनेक्टेडनेस है लोगों में, वो दिखा रही है मेरा तो नहीं है तो इधर भेजना है, इनको भेज दिया या किसी ने किसी को भेज दिया। सो दिस इज दैट 1 hop distance, 2 hop distance, 3 hop distance, 5 hop distance, not more than that। इन केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क ये जो लेयर्स होती हैं ये बढ़ाते जाते हैं जब, तो इससे नेटवर्क डीप नहीं होता चला जाता है। GCN में फीचर जो एग्रीगेशन हो रहा है वो कितने हॉप पे हो रहा है वो होता है। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कितने हॉप तक के फीचर को यू आर इंटरेस्टेड टू समहाउ गेट, सो एज टू गेट अ मीनिंगफुल फीचर आउट ऑफ दिस। ओके, सो इससे फायदा ये है कि आपके पास अगर पूरा का पूरा नेटवर्क है और उस पूरा का पूरा एक ग्राफ है और आप उस ग्राफ का फीचर निकालना चाहते हैं तो आप हो सकता है ज्यादा डीप नेटवर्क में पास करें, क्योंकि आपको पूरे के पूरे ग्राफ का एक सिग्नेचर सिंगल वैल्यू चाहिए और फाइनली आप उसे एक क्लासिफिकेशन लेयर लगा करके क्लासिफाई करने लगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, दूसरे लोगों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। बहुत ही हाई लेवल, मतलब आई डोंट नो मच अबाउट दिस ड्रग डिस्कवरी, बट ड्रग डिस्कवरी में इस तरीके के चीजें लग रही हैं। अल्फा फोल्ड एक पेपर आया था डीप माइंड का,
उसमें RL एंड ग्राफ न्यूरल नेटवर्क दोनों को इस्तेमाल किया गया। तो यही मैं बता रहा था कि एक समय था 4 साल पहले, 4-5 साल पहले, तो वो कहते थे कि CNN 5-6 साल पहले, तो आप CNN पे कुछ भी करें पेपर छप जाएगा आपका। उसके बाद या RNN पे करे या GAN पे करे या समथिंग, बट आफ्टर 2 years एंड सो ऑन, मे बी इन 15, 16, 17 आपको सिंगल नेटवर्क से नहीं छपेगा, आपको CNN LSTM मिलाना पड़ेगा। CNN के साथ मतलब गैन्स बनाने बन जाएंगे, जिसमें 2-3 तरह के नेटवर्क्स एक साथ कोलैबोरेटिव वे में लर्न कर रहे हैं। उसके बाद अगर अभी आप ट्रेंड देखें तो अभी सीधा ग्राफ CNN RL दे आर गेटिंग बूम्स, बट द पॉइंट इज कि ये दोनों चीजें अगर मिला करके आप कोई काम करते हो तो उसका एडवांटेज काफी ज्यादा हो रहा है। जैसे कि मैंने अल्फाफोल्ड का, अल्फाफोल्ड पेपर लोगों को पढ़ना चाहिए। अल्फागो पेपर मैंने पढ़ा दिया है, DQN है वो बेसिकली। अल्फागो बहुत पहले आया था डीप माइंड का, मे बी इन 16, आई डोंट नो 16, 17 या उससे भी 15 का, डेविड सिल्वर लोगों के ग्रुप का था, और उसमें DQN ही था। और उन्होंने अटारी गेम को खेल करके दिखाया था सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी से, और DQN, सिंपल DQN से दे यूज्ड टू समहाउ हुआ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ही इजी था जो हम लोग सब समझ लिए थे ना। तो हमने ये देख लिया था कि आप किस तरह से, तो आपके जो न्यूरल नेटवर्क का एक लेयर होती है, उस लेयर में एग्रीगेशन होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यही तो होता है ना, आप एक न्यूरॉन है तो आप सारे लोगों से कहते हो मुझे डेटा दो, डेटा दो, सारे इनपुट ने आपको डेटा दिया, आप एग्रीगेट करते हो और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हो। ट्रांसफॉर्म करने के लिए वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन लीनियर एक्टिवेशन लगा देते हैं। सिमिलर टाइप का यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये मेरा आया था, ये मेरा एक तरीके का एग्रीगेशन है ना, दिस इज एग्रीगेशन। व्हाट इज दिस? AX मैंने बताया था, AX क्या कर रहा है, बेसिक एग्रीगेशन कर रहा है। A एड X सेल्फ लूप लगा के एग्रीगेशन कर रहा है, और ये एग्रीगेशन तो कर रहा है बट वेटेड एवरेजिंग के साथ। वेटेड, तो वेट क्या लग रहा है इसमें कि किसका डिग्री कितनी है, डिग्री के हिसाब से वो वेट कर देता है उसको। तो दैट इज हैपनिंग ओवर हियर, एंड W मल्टीप्लाई कर दिया, विच मीन्स दैट अ सिंगल लेयर, इसके ऊपर अगर मैं सिग्मॉइड या रेल्यू लगा दूं, इसके ऊपर अगर मैं सिग्मॉइड या रेल्यू लगा दूं, तो यही चीज क्या बन गई, ये मेरी एक लेयर बन गई। ये GCN लेयर है, स्पेशियल कन्वोल्यूशन के साथ GCN की एक सिंगल लेयर है, ये सिंपल सी। इस W के साथ आप प्ले करते हुए ये सेट कर सकते हो कि आपका जो आउटपुट निकलेगा फीचर वेक्टर, उसकी डायमेंशनलिटी क्या होगी, बिकॉज ये W जो है इट कैन बी RN क्रॉस और RM, तो ये N से फीचर को लेके M में लेकर के जा सकता है, जैसा आप चाहें वैसा W लर्न यहाँ करा सकते हो। तो ये बातें हमने कर ली, फिर हमने वही बताया कि यहाँ रेल्यू लगा दिया। तो इसका मीनिंग क्या है आप सभी समझ रहे होंगे। यहाँ पे कुछ आप ट्रांसफॉर्मेशन करें, सॉरी एग्रीगेशन करें, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करें और फिर एक्टिवेशन लगा दें, ये आपकी लेयर बन गई। ये रेल्यू लगाया है, या निगेटिव वैल्यूज थी तो 0 हो गया, अदरवाइज वही बचा रहा। और अगर सिंगल ही कॉलम था, इस पे अगर रेल्यू लगाओगे तो यही रहेगा, पॉजिटिव पे रेल्यू पॉजिटिव रहता है, ये सब आपको पता है। इसके बाद कुछ चीजें मैंने बताई हुई हैं, मैं सीधा आप पे आ जाता हूं, ताकि हम, ये बहुत ही आसान चीजें हैं जो मैं कवर अप कर चुका हूं। मैं सीधा एक फोटो पे आऊंगा, ये स्पेक्ट्रल रूल है। स्पेक्ट्रल रूल पे आने से पहले मैं वो वाली बातें बता दूंगा कि देखिए मेरे पास एक लेयर है, एक न्यूरॉन, सॉरी एक नोड है ये I, एक नोड है ये J, इनके बीच में कनेक्शन है AIJ विच इज इक्वल टू 1। अगर कनेक्शन है तो एडजेसेंसी में 1 होगा। इसकी डिग्री है DII, इसकी डिग्री है DJJ। और अभी तक आपने क्या सीखा,
आपने ये सीख, इसका फीचर है एक्स जे और इसका फीचर है एक्स आई। तो एक्स आई में एक्स जे आएगा क्योंकि ये कनेक्टेड है ना। तो एक्स आई में एक्स जे कितना आएगा, पहले तो आएगा कि नहीं आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, इस पे कि ये वैल्यू अगर 1 है तब आएगा। 1 है तो क्यों 1 है, क्योंकि वो नेबरहुड में, दैट्स व्हाई इट इज 1। सो द ओनली ए for i's, so I remains to be fixed for all j's. Only those j's for which aij is equal to 1, they are going to contribute because they are the neighbors. They are contributing, that is one thing, but how much they will be contributing from their xj's? How much xj is going to come? So पहला रूल ये कहता है कि पूरा ले लो, जो हमने सम रूल बनाया था, a into x वाला या a hat into x वाला। तो पूरा ले लो का क्या मतलब है कि xj पूरा का पूरा आएगा। सो ए आई जे इंटू एक्सजे चल गया था, क्या चला था, क्या लिख देता हूं, ए आई जे, ठीक है, इंटू एक्सजे, इतना आएगा। बाद में एक आए, उन्होंने कहा यार वो किन्हीं किन्हीं की डिग्री ज्यादा हो सकती है तो उनको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, उसका कर दो ए आई जे डिवाइडेड बाई डी आई आई, डिग्री। डिग्री मैट्रिक्स है, डिग्री मैट्रिक्स n क्रॉस n, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स, एंड डायगोनल पे उनकी डिग्री क्या है, डिग्री रखी हुई है हर एक नोड की। तो ए आई जे डिवाइडेड बाई डी आई आई टाइम्स एक्स जे, तो एक्स जे का इतना आएगा। ये दो बातें हम पहले ही कर चुके थे। तीसरा रूल है स्पेक्ट्रल रूल। स्पेक्ट्रल रूल क्या कहता है, ये लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से इसको मैंने ठीक कर दिया था, पहले यहाँ गलत लिखा था। तो ये क्या है, ये है d1/2 -1/2, दिस इज अंडर रूट ए आई जे डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी आई आई डी आई जे। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या बात क्या है, बात यह है सेम टू सेम, ये नोड, ये डिग्री, ये डिग्री, ये जेथ नोड है, आईएथ नोड है, कनेक्शन है, फीचर वेक्टर है। अगर ये लिंक है और ये ऐसा लिंक है या इस डायरेक्शन, इफ इट्स डायरेक्टेड, देन एक्सजे में गो फ्रॉम दिस टू दिस और xi में गो फ्रॉम दिस टू दिस, डिपेंड्स किस डायरेक्शन में। अभी हम मान ले, अगर मान लो इवन बाई डायरेक्शनल है तो ये इधर से इधर लिंक जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है। When it is going from here to here, तो xi will go, और here to here, then xj will go. How much xi and xj can go? How much? Okay. तो अभी जो मैंने रूल बताया, अगर मैं उसके हिसाब से बोलूं, विकारते कैसे थे, इरेजर, हाँ। सो अभी जो मैंने आपको रूल बताया, अगर उसके हिसाब से चले तो ये एक नोड है और ये है, और ये ऐसे होना चाहिए डायरेक्टेड। क्यों? बिकॉज अभी डायरेक्टेड के हिसाब से रूल बताया, क्योंकि डी आई आई से डिवाइड करते हो। तो इस एक्शन के लिए, मतलब इस एज के लिए, ए आई जे विल बी डिवाइडेड बाई डी आई आई, and if it is this, then this will be djj if the angle is, the direction is reversed. So अभी तक का जो रूल बताया था कि सम या फिर डायगोनल से डिग्री से नॉर्मलाइज, which is essentially directed के लिए. Now let us say, and let us think about a scenario. Now, the scenario is that this edge can be seen as a medium via which features can flow from here to here or here to here. ये इधर से आ सकता है, उधर जा सकता है। कितना आएगा, कितना जाएगा, पहले ए आई जे के हिसाब से चल रहा था, उसके बाद ए आई जे डिवाइडेड बाई डी आई आई के हिसाब से चलने लगा, और एंगल डायरेक्शन आ गया। नाउ
नाउ आवर सिनेरियो सेज, ध्यान से सोचते हैं कि ये एक स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक लिंक बना हुआ है। ये एक टीचर है, ये एक स्टूडेंट है, and now teacher and student, they are somehow connected. That is why aij is equal to 1. dii क्या है? डिग्री ऑफ द टीचर। मैं हूं टीचर, तो मेरी डिग्री क्या बताती है कि मैं कितने सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है। तो मैं बहुत सारे बच्चों के साथ कनेक्टेड हूं, और ये स्टूडेंट है, ये किसी के साथ नहीं कनेक्टेड है, अकेला लड़का एक ही के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो बहुत बार मेरे पास आएगा, मतलब which essentially dii is high and djj is low, and right now we are only considering dii, djj की तो कोई बात ही नहीं करता था। अब ध्यान दो कि एक रिलेशनशिप में एक नोड एक दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है, एंड व्हेन यू आर डूइंग नॉर्मलाइजेशन यू आर ओनली यूजिंग dii। उस नोड की डिग्री से कुछ लेने देना नहीं था। अब देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन xj का कितना आएगा मेरे पास, ये इस पे डिपेंड करता था कि मेरी डिग्री क्या है। अच्छा, उसकी डिग्री पे कुछ नहीं डिपेंड करता। ये बिल्कुल ऐसा है कि टीचर तो फ्री है, बिजी है, तो टीचर बिजी है तो लड़के का कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाए, क्योंकि वो बार बार आएगा, मुझे मिलेगा, मैं मिलूंगा ही नहीं, मैं बहुत सारे कामों में बिजी होऊंगा। लेकिन अब वो भी बहुत बिजी है, तो वो और भी कम आएगा और मैं और भी कम मिलूंगा। तो अगर मैं पहले उसको 10 में एक बार मिलता था, अब 100 में एक बार हो गया, तो कंट्रीब्यूशन और भी कम हो गया। Which means that if there is a relationship like this, why you are not considering this thing, the degree of other guy. So now, previously it was 1 divided by dii. Can we make it 1 divided by under root of dii into djj? इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि इसमें 4 ही कंडीशन हो सकती है। ये स्पार्स है, ये भी स्पार्स है, ये डेंस है, ये भी डेंस है, या तो फिर ये स्पार्स है, वो डेंस है, वो स्पार्स है, ये डेंस है। अगर दोनों ही स्पार्स है तो dii और djj इक्विवेलेंट हो जाएंगे दोनों। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए तो ये और ये एक बराबर हो गया। अगर दोनों ही डेंस है या दोनों ही स्पार्स हैं, दोनों ही केसेस में द बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सिमिलर। मुद्दा तभी आता है कि एक स्पार्स है और एक डेंस है। अगर दोनों में से कोई भी डेंस होता है तो फीचर की वैल्यू कम हो जानी चाहिए। ये इससे इंश्योर हो जाएगा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर कोई भी हाई होता है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू नीचे आ जाएगी। इससे तो बेसिकली इस लिंक की क्षमता xj को भेजने की कम हो जाएगी। तो अगर इस लिंक की क्षमता xj को भेजने की कम हो जाती, दैट इज द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। और दिस इज नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम आर्बिट आवर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रल रूल, बिकॉज ये स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन से भी आ रहा है। इसका प्रूफ भी है, वो हम नहीं कवर अप कर रहे हैं। आप एडजेसेंसी लिस्ट को, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को लेकर के स्टार्ट करें एंड देन अप्लाई सर्टेन कंस्ट्रेंट्स ओवर दैट एंड कीप ऑन डिड्यूसिंग दैट हाउ वी कैन get the connected components of a graph. So it actually says that you need to somehow normalize your graph like this. This is nothing but the normalization. This is just a normalization. This is also, I guess, called as the Laplacian normalization. As Laplacian normalization, Laplacian, that's that. So that's the Laplacian, and basically the L minus D is A minus D is this, right? A minus, anyways, वो मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा क्योंकि शायद रंजीत ने वहां बताया हो या उसने बताया हुआ है ना। तो ये this is Laplacian in fact. So and from that it actually being shown that if you use this L which is actually A minus D, तो finally eigen analysis and so on करने पे आपको connected components compute होने लगते हैं। तो कनेक्टेड कंपोनेंट को निकलने का क्या मतलब है कि सर्टेन लोग एक ग्रुप के,
सर्टन लोग एक ग्रुप के, सर्टन लोग एक ग्रुप के, तो इससे क्या हुआ, नोड की क्लस्टरिंग होने लगी। सो इफ यू वांटेड टू गेट द फीचर्स जिसमें कि सिमिलैरिटी है, तो एक्चुअली आपको ऐसा नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए सो दैट कि सिमिलर नोड स्टार्टेड टू गेट सिमिलर फीचर। और आपको याद होगा यहीं से स्टार्ट किया था कि ऐसे फीचर्स आने चाहिए जो सिमिलर है। तो बेसिकली आपने बस किया क्या, इसमें कुछ किया नहीं, आपने बोला कि भाई अब जो मेरा फीचर होगा इट इज, ये लिखा हुआ है, which is going to be normalized by this aij divided by under root of dii djj multiplied by xj। तो प्रीवियसली सिर्फ इतना था, बाद में ये और ये आ गया, और उसके बाद ये पूरा आ गया। ये तीन चीजों के साथ ग्राफ न्यूरल नेटवर्क स्पेशल वाले अधिकतर ऐसे ही बनते हैं। लोगों ने इसमें एनकोडर डिकोडर बना लिया, इससे गैन बना लिया। देखो ये कंसेप्ट आप लगाओ, अपनी लेयर्स लगाओ, एक सिंगल नेटवर्क बना लो, उस नेटवर्क से क्लासिफिकेशन करा लो, लिंक प्रिडिक्शन करा लो, उसका एनकोडर डिकोडर बना लो, उसका डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर बना लो, तो ग्राफ बनाने लग जाओगे। देन यू कैन जनरेट मोर एंड मोर ग्राफ्स कमिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मे बी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्राफ CNN में आई गेस वी आर डन विद दिस। हाँ, ये खत्म है। ग्राफ CNN में इतना ही है। इसका एक कोड जो है वो रंजीत आगे आने वाले कुछ समय में मे बी मंडे को कवर अप कर लें। मंडे सर, को। हाँ बोलो। सर हम डी में सर दो सबस्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, DII DJJ डी, मतलब वो तो डिग्री तो एक ही नोड की, मतलब वही होगी ना जितने नोड से कनेक्टेड है वो। हाँ, एक बार फिर से बोलो अपना क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? सर हम दो सबस्क्रिप्ट की यूज कर रहे हैं, मतलब DII DJJ। मैं बताता हूँ, वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ना हमने डिग्री मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिया है, D11 D22 D23 और ऐसे करते हुए DNN, और इसको कहते हैं इक्वल टू D मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स D which is essentially the डिग्री मैट्रिक्स। तो अगर मैं डिग्री मैट्रिक्स को ऐसे लिखता हूं तो मेरी डिग्री मैट्रिक्स की साइज n क्रॉस n हो जाएगी। यस सर। तो फिर वो A मैट्रिक्स भी n बाई n है और डिग्री भी n बाई n है, इसलिए। अदरवाइज तुम कह सकते हो कि D मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के बदले वेक्टर के फॉर्म में क्यों नहीं लिख देते हैं, D1 D2 Dn, तब ये कितने की हो जाएगी, n क्रॉस 1 की। यूजुअली ऐसे लिखा नहीं जाता। आगे बात समझ में? यस सर। रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट है, बट फॉर कंप्यूटेशन एंड सो ऑन की A और D की साइज बराबर है, सो दैट कि आप इनको आपस में माइनस कर सके, वरना माइनस करने में आपको अजीब से लिखना पड़ेगा थोड़ा। दैट इज द ओनली रीजन। और सर ये जो aij इक्वल टू 1 है, ये बस वन हॉप नेबर्स के लिए होता है ना, मतलब टू हॉप्स के लिए तो नहीं होगा 1? हाँ बताओ, टू हॉप्स के लिए कब होगा? अगर तुम स्क्वायर कर दो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। खैर वो ग्राफ की बात है, वैसे वो होता नहीं है। आप A लिखे पावर एडजेसेंसी मैट्रिक्स, अगर आप स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, ये कर दे, तो पावर मैट्रिसेस आपको बता सकते हैं कि वो 1 हॉप पे नेबर पे है, कि वो 2 हॉप के नेबर का है, कि 3 हॉप के नेबर का है। एक एल्गोरिदम भी होता है, उसका नाम होता है फ्लाइड-वॉर्शल एल्गोरिदम। फ्लाइड-वॉर्शल एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम होती है, जो कि यही पावर मैट्रिसेस का यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ निकालती है। बट एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 1 1 1 1 का मतलब है कि दे आर कनेक्टेड विद 1 हॉप, और 2 हॉप की कोई इंफॉर्मेशन उसमें होती ही नहीं है सिंगल एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। और पूछना है किसी को कुछ? सर और मतलब कितने हॉप्स तक कंसीडर करना है, वो कैसे डिसाइड करते हैं? मतलब ऐसा करते हैं कि हम बाकी हॉप्स को डिस्काउंटेड कर देते हैं जो जैसे जैसे हॉप्स बढ़ते रहते हैं, या फिर मतलब कुछ ये हाइपर पैरामीटर ही होता है कितने हॉप्स, जैसे आप हाइपर पैरामीटर है, और ये नेटवर्क में काम के ऊपर और नेटवर्क और फीचर्स टास्क और ग्राफ की डेप्थ पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जानना है कि अभिजीत मनहास का फीचर चाहिए, तो अब मैं अभिजीत मनहास और उसके मम्मी पापा से बात कर लूं,
अब दूसरा है मैं अभिजीत मन्हास उसके मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा से बात कर लूं, एंड हाउ फार आई वांट टू गो। तुम ही बोल दोगे अरे उसके ऊपर तो अवेलेबल ही नहीं है ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके साथ, अब उनके ग्रैंड पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, थे कभी लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं आपसे पूछता। तो उसी तरीके से ये डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल टास्क दैट यू वांटेड टू डू। अब अगर मेरा टास्क ही सिर्फ इतना है कि मुझे ये जानना है अभिजीत मन्हास किस तरह का लड़का है, तो मैं आपके मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ, मेरा काम बन जाएगा, है ना। अच्छा, अब मुझे ये जानना है अभिजीत मन्हास जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है पीएचडी में, इसे लिया जाना चाहिए कि नहीं। तो हो सकता है कि वो मेरे से, मेरे टीचर वगैरह से, आपके दोस्तों और आपके टीचर्स वगैरह से बात कर ले, उतने से काम चल जाए। इससे एक थोड़ा सा और आगे का एग्जांपल है कि मान लीजिए मतलब आपकी शादी होने लग जाए तो वो और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आपके बारे में, तो वो आपके 1 हॉप नेबर में भी 2 हॉप नेबर तक चले जाए कि अच्छा ये बीटेक में इन लड़कों के साथ पढ़ता था, एमटेक में इनके साथ पढ़ता था, नौकरी यहाँ कर रहा है। तो हर तरह के नेटवर्क में जा करके, सो इट डिपेंड्स दैट कि किस तरीके का और कितना कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म किया जाने वाला है, साथ ही साथ नेटवर्क में नोड्स कितनी है और कनेक्टेडनेस उस ग्राफ की कितनी है। वो ग्राफ ही बहुत ज्यादा स्पार्स है, अगर बहुत ज्यादा स्पार्स ग्राफ है जैसे कि आप और लोगों से मिलते ही नहीं है, तो अब अगर आपके 1 हॉप नेबर निकाले तो 2 आए, 2 हॉप नेबर निकाले तो 1 आया, फिर 3 हॉप नेबर निकाला तो वो भी 1 है। तो हो सकता है इन दैट केस प्रॉब्ली वी नीड टू गो मोर डीपर। तो ग्राफ के ऊपर, उसकी स्पार्सिटी के ऊपर और टास्क के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना डीप नेटवर्क हमें बनाया जाना चाहिए। मतलब डीप का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इन फंक्शन नहीं है, वो आपको उस लेयर में डिफाइन करना पड़ेगा कि लेयर में कितना न्यूरॉन लगाएंगे और किस तरीके से आप वो W, तो W आपको मैंने बीच में दिखाया था, वो W में कितना न्यूरॉन लगाएंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को लर्न करने के लिए। तो वो दैट इज गोइंग टू बी डिसाइड दैट कि कितना डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन लर्न करा रहे हैं। बाकी 1 लेयर लगाते हो, 2 लेयर लगाते हो, 5 लेयर लगाते हो, ये उस नेटवर्क की डेप्थ को नहीं बल्कि नेटवर्क ग्राफ की डेप्थ को एनालाइज कर रहा है। यस, ओके सर। हाँ, और किसी को पूछना है? ठीक है, सो वी आर डन एंड मंडे से हमारे प्रेजेंटेशन स्टार्ट होंगे। थोड़ा बहुत रंजीत को कुछ बताना है, प्रॉब्ली ही विल डू, एंड मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू हैव आवर ये प्रोजेक्ट क्लास प्रेजेंटेशंस ऑन पेपर प्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो मेरा सबसे यही कहना है कि सभी लोग जैसे क्लास में आते हैं वैसे तो क्लास में भी बहुत ही कम आते हैं, लेकिन क्लास की तरीके से ज्यादा ही बच्चे उसमें आए, क्योंकि वहां पे आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाद में नहीं पूछ पाएंगे उससे, और वो नया नया पेपर पढ़ा रहा होगा तो यूट्यूब से समझ में नहीं आएगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है कि हर एक प्रेजेंटेशन के बाद आपको हाफ पेज और 1 पेज में आपको उसे समराइज करके सबमिट भी करना है। मतलब ये कि मान लीजिए कि मंडे को आकाश मौर्य प्रेजेंटेशन देते हैं अपना, तो सारे बच्चों को उस प्रेजेंटेशन को सुन करके आधे पन्ने और 1 पन्ने में समराइज करके लिखना है कि इस बच्चे ने समझाया क्या, जिसको कि हम इवैल्यूएट करेंगे बाद में। और ये हमने सबसे पहले आज से 5 साल पहले ये टेक्निक चलाई थी, जब बच्चों ने इसको बोला कि जब हमने उनसे कुछ लिखवाया तो वो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन भी अटेंटिव रहते हैं ये समझने के लिए कि ये क्या समझा रहा है, और उस वक्त ही वो क्वेश्चन पूछते हैं, वरना वो सवाल ही नहीं पूछते। सवाल पूछने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लड़के से ये कह रहे हो कि तुमको ये नहीं आता या वो नहीं आता, आप अपना समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना समझ में आ जाए उतना ही अच्छा, ताकि आपको नए नए पेपर्स का अंदाजा हो सके। सो ट्राई टू अटेंड ईच एंड एवरी सेशन। Yes, so we are done. Thank you.